रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन एक और क्लास के साथ हाज़िर हुआ इंग्लिश लैंग्वेज के। लेट्स गो टू लर्न न्यू लेसन। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्रॉम एंड रोल प्ले टास्क। सो व्हाट इज़ फ्रॉम? वी विल लर्न दिस इन क्लास। फ्रॉम के हवाले से हम कुछ सीखेंगे कि फ्रॉम होता क्या है। बेसिकली फ्रॉम की मीनिंग है से और ताल्लुक़ रखना। से यहाँ पर फ्रॉम की मीनिंग तो दो निकलती हैं, से और ताल्लुक़ रखना। से एज अ प्रीपोजिशन के हिसाब से हम यूज़ करते हैं, और ताल्लुक़ रखना किसी कंट्री से हम कोई शख्स बिलोंग करता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, I have a sentence, you can't go from here. अब you can't go from here, इट्स मीन आप यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ पर from एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। बट here we are learning about some person belong to another countries, so we use ताल्लुक़ रखना from. So in this lesson, how to use and make sentence, how to write sentences like this. Suppose first of all, personal pronouns, be verbs and helping verbs, formula. So we will discuss about in these today class personal pronouns and also called subjective pronouns. Personal pronouns which is used the someone do something. Suppose I is the first person singular, he, she, it. These are third person singular and anyone name also. You, they, we, these are second person plural and third person plural. I means मैं, he means वो लड़का, she means वो लड़की, it बेजान चीज़ों के लिए ये या वो. Anyone name, one should be boy name, one should be girl name. You तुम और आप, they वो लोग, we हम. And the second, be verbs and helping verbs. There are two new names, is, am, are. Is, am, are, it's a be verb. Is, am, are, the presence be verb. Is means हैं, am means who, are means हैं. When we use I, we use and with be after the I be verb use I am. I am. Okay, last time we will discuss about these all also, but here again I am explaining you how to use in personal pronoun with be verbs. तो I के साथ हम यूज करेंगे am को, I am. When we use third person singular, he, she, it, anyone name, we use is. He is, she is, it is, Ali is, Saima is. And the remaining be verbs are we use for second person plural and third person plural. You are, they are, we are. So these are called be verbs and those are called personal pronouns. I, he, she, it, anyone name, you, they, we. And how to use in our sentences? Formula, subject plus be verb plus from plus object. Now make a sentence like I have written some sentence. For example, I am from Pakistan. I'm not from Pakistan. Are you from Pakistan? इट्स मीन मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है। क्या आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है? Another example, if you want to make a third person singular, he is from Switzerland. He is not from Switzerland. Is he from Switzerland? And again I am verbally saying something. She is from England. She is not from England. Is she from England? It is from Malaysia. It is not from Malaysia. Is it from Malaysia? Ali is from Turkey. Ali is not from Turkey. Is Ali from Turkey? Saima is from Dubai. Saima is not from Dubai. Is Saima from Dubai? You are from London. You are not from London. Are you from London? They are from Indonesia. They are not from Indonesia. Are they from Indonesia? We are from Australia. We are not from Australia. Are we from Australia? So these are affirmative sentences. Okay? And you write it down, you register and point out in these sentences in your diary and practice again and again. Inshallah, you will be perfect in these sentences. The second
thing is IW question. How to make in this sentence IW question? I have written some example. If you want, if you say I am from Pakistan, what should be in answer your question? Where are you from? It's mean आपका ताल्लुक कहाँ से? Where? I told you some IW question example in first class hour. So where are you from? आप where we use for in place, it can be place. Where are you from? Where are you going? I'm going to another way. I'm going to outside. So यहाँ पर where are you from? Where is she from? Where is Saima from? Where is he from? Where is Ali from? Where are they from? Where am I from also? And where are we from? हमारा ताल्लुक कहाँ से? So these are IW question about all the subject. Where are you from? Where is she from? Where is Saima from? Where is he from? Where is Ali from? Where are they from? These are called IW question. And use our jot down your register and note it and how to make a sentence like. And this from today we have learned, and from today I have explained all the things how to use and how to when we use we use am. When we use he, she, at any one name, we use is, and you, they, we use are, be verbs. And this is a structure and also called formula. I am from Pakistan. I am not from Pakistan. Are you from Pakistan? He is from Switzerland. He is not from Switzerland. Is he from Switzerland? And IW question. Where are you from? Where is she from? Where is Saima from? Where is he from? Where is Ali from? Where are they from? Okay, these are I hope you are understood, and these all the structure how to use. So next, our next role play task. I gave you role play task. I have written this question. You should be answer in your comment. Assalamu alaikum. What's your name? So what should be answer? It should be, are you from Dubai? What the answer should be here? Where are you from? And where are you from? What should be answered this question? And are they from London? What should be answered this? And where are they from? And these are your role play task. And you gave me answer with your comment. I will check all the answer. If you didn't watch our first class and go and watch it, you can see our first class is given above. So role play task. Okay, now we will learn, and next steps is English grammar. We will discuss and we will be learn about parts of speech. What is parts of speech? Parts of speech, the definition of a part of is class of words based on the word function, the way it works in sentence. There are 9 parts of speech in English. Parts of speech वो चीज़ें होती हैं जो हम पूरा उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज के सारे कंटेंट्स आते हैं, जो 9 पर मुश्तमिल हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर उसके कुछ काइंड्स हैं, कुछ काइंड्स ऑफ नाउन हैं, जैसे आर्ट, प्रोनाउन, इस तरह वर्ब के 4 काइंड्स हैं, इस तरह एडजेक्टिव के कितने डिग्रीज हैं, तो वो उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। विल लर्न। So parts of speech, the definition of a part of is a class on words based on the word function, the way it works in sentence. There are 9 parts of speech in English. So first is noun. Noun is the name of person, place or thing. It's small definition. You memorize it. Noun is the name of person, place or things. कहते किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम और कोई भी चीज़ों का नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान कराची बुक। तो यहाँ पर ये इमरान किसी शख्स का नाम हुआ, प्लेस किसी जगह का नाम कराची हमने टाइप किया, और बुक किसी चीज़ का नाम हो गया किताब।
इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। इमरान, अब इसमें जैसा मैं जुमला बनाता हूँ, इमरान इज़ गोइंग टू स्कूल। अब ये हमारा इमरान जो यहाँ पर हुआ वो नाउन हुआ। इमरान इज़ गोइंग टू स्कूल, इमरान स्कूल जा रहा है। कराची, कराची इज़ अ प्लेस नेम। आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ। बुक, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं। या देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर 2 किताबें हैं। तो इस तरह के इसके जुमले बनते हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। प्रोनाउन, द सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कहता है प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं किसकी जगह पे, नाउन की जगह पे। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, आई, यू, वी, दे, ही, शी एंड इट, और बेजान चीज़ों के लिए मतलब इट यूज़ होता है, और एनी वन नेम। वी कांट राइट हियर एनी वन नेम, मतलब एक बॉयज़ का नाम शुड बी, एक गर्ल का नाम शुड बी। फॉर एग्जाम्पल, Aslam is good boy. Here is mentioned the name. If you don't want to mention any name, so use he. The place of name use, and if the person is boy, so use he. If the person is she or Saima, so you can't write name, so you should use she. तो असलम इज़ अ गुड बॉय, असलम एक अच्छा लड़का है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। सो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। असलम इज़ अ गुड बॉय। इफ यू वांट टू सेंड अनदर सेंटेंस, अली इज़ फ्रॉम दुबई एंड अली इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। अगर एग्जाम्पल बनाना चाहते हो, अली इज़ फ्रॉम England and he is a teacher, या he is a mechanic, he is an accountant। तो इस तरह हम जुमले बना सकते हैं। The third parts of speech is adjective. Adjective, an adjective describe a noun or pronoun, thing, important, busy, good, cheap, like this। So adjective describe करता है नाउन और प्रोनाउन को। अगर हम अनदर वर्ड को कहते हैं द एडजेक्टिव ऑलवेज शो द गुडनेस और बैडनेस ऑफ सब्जेक्ट। एडजेक्टिव ये एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बयान करते हैं लोगों के और चीज़ों के। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पर गुड एक लड़के की अच्छाई बयान कर रहा है, कहता है ही इज़ अ गुड बॉय, ये एक अच्छा लड़का है। इसी तरह इट इज़ अ चीप कार, चीप का मतलब होता है सस्ता। इट इज़ अ चीप कार, ये एक सस्ता गाड़ी है। नदीम इज़ अ स्टूडेंट, नदीम इज़ अ स्टूडेंट, नदीम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, नदीम इज़ अ स्टूडेंट। अब मैं लिखता है नदीम इज़ अ इनोसेंट स्टूडेंट, नदीम एक मासूम लड़का है। तो देयर आर मैनी एडजेक्टिव। I give you one sheet, and next class, maybe another class, I will give you sheet. You memorize all the adjective, you will be perfect in that, vocabulary should be perfect. So good, bad, careless, hot, cold। तो जैसे हम उर्दू में कहते हैं अल्फाज ज़िद, तो ये वही है उर्दू में अल्फाज ज़िद, और यहाँ पर एडजेक्टिव के नाम से है इंग्लिश में। तो गुड, बैड, एक्सपेंसिव महंगा, चीप सस्ता, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, लॉन्ग बड़ा, स्मॉल छोटा, बिग और स्मॉल, बिग माने बड़ा, स्ट्रॉन्ग वीक, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज़न्ट अ स्ट्रॉन्ग मैन, इज़ ही अ स्ट्रॉन्ग मैन, लाइक दिस। इसी तरह तो दीज आर एडजेक्टिव। I'm late, it's also late is also adjective। he is a curly hair, curly hair मतलब घुंघराले बाल जो उसके होते हैं। he is a straight hair,
तो स्ट्रेट माने सीधे लंबे बाल, तो ये भी आपके एडजेक्टिव है। जो चीज़ आइडेंटिफाई करे, जो चीज़ कोई सिफ्त बयान करे, एडजेक्टिव माने सिफ्त बयान करना किसी चीज़ का, तो उसको एडजेक्टिव हम कहते हैं। द फोर्थ इज वर्ब। वर्ड इज वर्ब। अ वर्ब टेल्स अ नाउन्स एक्शन, प्रोनाउन एक्शन। वर्ब हमें बताता है कि एक्शन को ज़ाहिर करता है, किसी भी वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन को, चीज़ के एक्शन को। फॉर एग्जांपल, ही गोज़ टू स्कूल, बॉय यूजेस कंप्यूटर, बॉय यूजेस कंप्यूटर। ही गोज़ टू स्कूल मतलब वो स्कूल जाता है, और बॉय लड़के कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब वो होता है जिसके आखिरी में नून अलिफ ना आता है। फॉर एग्जांपल, उर्दू में आना, जाना, पीना, सोना, दौड़ना, बदतमीज़ी करना, दौड़ना, खेलना, मारना, लिखना, बनाना, पकाना। तो जिसके आखिरी में नून अलिफ ना आता है वो वर्ब होते हैं। वो इम्पोर्टेंट होता है बात करने के लिए। आपको कम से कम मिनिमम यू विल बी मेमोराइज 500 वर्ब्स। If you memorize 500 verb, you can speak English, because the verb is most important thing is in English. If you know about the meaning of the verb, okay, आना जाना, go, want, चाहना, need ज़रूरत होना, play खेलना, catch पकड़ना, so these are polish करना, तो these are the verb you should memorize. तो वर्ब काइंड ऑफ एक्शन ज़ाहिर करना किसी चीज़ का। देन एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच what is a verb and it's had something to meaning of verb. ये मज़ीद वर्ब की खुसूसियात को बयान मज़ीद करता है। टुमारो, हेयर, रियली, स्लोली, ऑलवेज, दीज आर adverb. She always speaks in Urdu. She always speaks in Urdu. या she always speaks in Urdu well. अब well भी यहाँ पर एक एडवर्ब बनता है, गुड का well है। इसी तरह जिसके आखिरी में एलवाई आता है, स्लो, स्लोली। she types slowly, वो आराम से टाइप करता है। अली ड्राइव्स कार केयरलेसली, वो लापरवाही से गाड़ी चलाता है। अली ड्राइव्स कार केयरलेसली, अली गाड़ी लापरवाही से चलाता है। तो यहाँ पर एडवर्ब की खूसियत है जिसमें आखिरी में एल वाई हम लगाते हैं, तो वो आपका एडवर्ब बनता है। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब and the adverb. Now we discussing about preposition. A preposition shows the relation such as direction, time or placement between a noun or pronoun, in other words, in a sentence. इसका आसान तरीका ये है, preposition to show the exact place of the thing. प्रीपोजिशन से हम ये ज़ाहिर करते हैं कि वो उस चीज़ का एग्जैक्ट जगह कहाँ है। तो उसके लिए कुछ प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि एट, आफ्टर, ऑन, बट, अबाउट, इन, ऑन। तो ये भी मैं आपको इन, अंडर, behind, out. तो एट, आफ्टर, ऑन, बट, अबाउट, इन, अंडर, बिहाइंड, आउट, एंड near. These are preposition. How to use? Suppose on.
ऑन का मतलब होता है ऊपर, कोई भी चीज़ ऊपर पड़ा हो, टेबल के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, अलमारी के ऊपर, तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। और इन, जो चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, दराज के अंदर हो, कबोर्ड के अंदर हो या जेब के अंदर हो, तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। और नियर, नज़दीक, करीब, कोई चीज़ हमारे नज़दीक हो या हमारे घर के नज़दीक हो, उसके लिए नियर, और जो चीज़ दूर हो उसके लिए फार होता है। तो दीज आर, अच्छा, अंडर, नीचे, कोई चीज़ नीचे हो, बिहाइंड, पीछे, आउट, बाहर। अब जैसे मैं एग्जांपल देके आपको ऑन के साथ बताता हूँ। अच्छा, एट और आफ्टर बाद में, एक होता है बिफोर, पहले, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। तो अबाउट, उसके बारे में हम डिस्कस अबाउट दैट, जिस तरह हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे इन, अंदर, देयर इज़ अ बुक इन द कबोर्ड, देयर इज़ अ बुक इन द कबोर्ड। इसी तरह वेयर इज़ माई मोबाइल, इट इज़ ऑन द टेबल, इट इज़ ऑन द टेबल, आपका मोबाइल टेबल के ऊपर है। अंडर, नीचे, देर आर 2 कैट्स अंडर द टेबल, टेबल के नीचे 2 बिल्लियाँ हैं। बिहाइंड, देर इज़ अ गोस्ट बिहाइंड ऑफ मी, देर इज़ अ गोस्ट बिहाइंड ऑफ यू। गोस्ट कहते हैं जिन को, तो बिहाइंड माने पीछे। आप ये भी, देर इज़ अ वाइट बोर्ड बिहाइंड ऑफ मी, मेरे पीछे एक वाइट बोर्ड है। आउट, बाहर, देर इज़ अ कूलर आउट ऑफ द क्लास, देर इज़ अ बाइक आउट ऑफ द क्लास, देर इज़ अ बिग शॉपिंग मॉल आउट ऑफ द माई एरिया, मेरे इलाके के बाहर एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, जो भी है। नियर, नज़दीक, देर आर 2 कैट्स नियर ऑफ मी, मेरे नज़दीक 2 बिल्लियाँ हैं। सो वी विल बी मोर डिस्कसिंग अबाउट, जब ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे मज़ीद। उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन, अ कंजक्शन ज्वाइंट्स 2 आइडियाज और शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। टू पार्ट्स ऑफ कंजक्शन उन जुमले को कहते हैं जिसमें 2 जुमले ज्वाइंट हो। कितने? 2 जुमले ज्वाइंट हो, उसको हम कंजक्शन सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I can play cricket but I can't play football. I can play cricket but I can't play football. Like this, I can play cricket but I cannot play football. I can play cricket but I cannot play football. It's mean here is but to show that these are 2 sentences. These are 2 sentences. I can play cricket, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ लेकिन मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता। इसी तरह एक और जुमला, I couldn't play cricket when I was 5 years old. I couldn't play cricket when I was 5 years old. जब मैं 5 साल का था तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था। तो यहाँ पर भी हम ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कंजक्शन वो उन जुमलों को कहते हैं जिसमें 2 सेंटेंस टुगेदर हो। तो फॉर एग्जाम्पल, एंड सो विच बर्ड अनलेस आई ड्रिंक मिल्क बट माई ब्रदर डजेंट। अब जैसे कि यहाँ कहता है कि मैं दूध पीता हूँ लेकिन मेरा भाई दूध नहीं पीता। यहाँ पर 2 आपको एग्जाम्पल शो हो रहा है। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इट इज़ ऑफ्टन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर जैसे खुशी गम के हवाले से कुछ वर्डिंग होती है, हम उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाव, व्हाट्स दैट, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ दिस, वाव। तो वाव। इसी तरह, व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल कार, क्या गाड़ी है खूबसूरत। हुर्रा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे जुमले हैं, हुर्रा, हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, हरी अप,
तो हरी अप यहाँ पर इंटरजेक्शन है, वाव इंटरजेक्शन है, हुर्रा होता है एक। तो कुछ ऐसे फीलिंग जो खुशी के मौके पे या गम के मौके पर कहा जाते हैं, उसके स्टार्टिंग में कुछ बोलते हैं तो उसके लिए इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, एवर सिंस बिगिनिंग, हमारा जो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी स्टेप था वो आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। आर्टिकल्स, व्हाट इज आर्टिकल्स? आर्टिकल्स, एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन विच इज अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। अब कहते हैं आर्टिकल्स क्या होता है, एक वर्ड है, अल्फाज है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं नाउन विच इज़ पर्सन, शख्स का किसी नाम, प्लेस, ऑब्जेक्ट। देर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, दे आर ए, एन, दा। एक आ, एन, दा भी होता है, ए, एन, दा। एन आइडेंटिफाई आर्टिकल ए एंड एन यूज आ इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट। यूज ए कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपका वर्ड, पहला करेक्टर वर्ड का कॉन्सोनेंट हो। पहला वर्ड कॉन्सोनेंट के कुछ वर्ड मैंने आपको फर्स्ट क्लास में शायद आपको बेसिक बता दिया था, शायद आपको उसमें समझ में आया। तो यहाँ पर दोबारा आर्टिकल्स उन्हीं को कहते हैं जो पहला करेक्टर इस्तेमाल होता है, जैसे कि आ बुक, आ कॉपी, आ चेयर, आ डोर। तो दीज आर कॉन्सोनेंट वर्ड, वी यूज आ। आ इज आइडेंटिफाई द सिंगुलर थिंग, ए आपके लिए सिंगुलर शो करता है। एन, यूज एन इफ द वर्ड स्टार्ट विद वॉवल। कहता है कोई भी वर्ड उसका पहला करेक्टर वर्ड का स्टार्ट होता है, कोई भी करेक्टर अलिफ का साउंड हो, उसको हमने एन यूज करना है। जैसे कि एन एप्पल, एन आयरन, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम, लाइक। एन, यूज एन इफ द वर्ड स्टार्ट विद वॉवल। वावल वाले वर्ड वो होते हैं जिसका पहला करेक्टर ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर कॉल्ड वावल्स। तो वावल हमेशा साउंड आता है अलिफ का। फॉर एग्जांपल ऑरेंज, ओ, अगर हम उर्दू में इसमें लिखेंगे ओ अलिफ से लिखेंगे। आयरन, अली मदा इस तरह लिखेंगे। अम्ब्रेला, अलिफ अम, रेला। इसी तरह एलिफेंट, तो वो भी अलिफ से हम लिखेंगे। आयरन हो गया, एलिफेंट, ऑरेंज। तो दीज आर आपको अलिफ से स्टार्ट करने हैं, ये चीज अलिफ साउंड नहीं है। तो एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज। सो दीज आर vowels when we first character use, we use an. And last, the, define the article, the use the before singular, countable और common noun। अब जैसे कि दा के एग्जाम्पल यहाँ पर हमने राइट नहीं किए हैं, तो आप बाय द टाइम इसको सीखेंगे। तो दा स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो स्पेसिफिक यूज़ हो, जैसा कि द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कराची। तो इस तरह के जुमले, जहां हम पाकिस्तान सबसे बड़ा शहर कराची है, तो यहाँ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक बड़ा चीज़ को, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। सो द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कराची। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी यूज़ दा। इसी के साथ अपने टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन को इजाज़त दीजिए। एक और न्यू क्लास के साथ आइंदे क्लासों में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।